Yes, students, very good morning to all of you. So we have started with chapter number 5th, rather 5.1. No, we were doing concept of chapter, na? Concepts of 5.1 we have finished. So I was telling you about histogram yesterday, and we have done so many types of the definition, like intervals and upper limit, lower limit, class mark, size of the interval, etc. Right? So now let me tell you about histogram. I think we have done it like na definition has been done. So let us try this page number 75. Look at try this page number 75. Try this at page number 75. Histogram is given to us. I am making it accordingly. This is x-axis, y-axis. This is 0. This is 125. 130, 135, 140, 145, 150, 155, and 160. This is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, and 6. This is heights in centimeter. This is heights in centimeter, and this is on this side, it is number of students. Right, on this side it is number of students, and it's made like bana hua histogram. We have to answer certain question. 2, 3, then 7. This is 3. This is 2. This is 1. This is 7. Then 4. Then 2. Then it is 1. So as I am making the histogram, one thing you might have noticed that in case of histogram, you see the bars are of the same width, and moreover there is no gap between the bars. Hanji Kritika, what do you want to ask? Kritika, hurry up, ask your doubt. Kritika, speak up. बच्चे आपकी आवाज ही नहीं आ रही. कृतिका, Jayant, what do you want to say? Ma'am, I have doubt in first question of triadies of page 74. 74. First question. अच्छा, this we have left. ये हमारा रह गया है, किया तो था हमने. मैम किया था मैम, मुझे डाउट है मैम फर्स्ट तो क्वेश्चन क्या डाउट है? मैम वो आपने उसमें फर्स्ट वाली सिलेक्ट की थी इंटरवल, बाकी क्यों नहीं मैम आपने सिलेक्ट की? साइज निकालने के लिए. यस मैम. साइज आप किसी भी इंटरवल से निकाल सकते हो. ओके मैम. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी कृतिका बोलो. कृतिका, यू आर नॉट ऑडिबल एट ऑल. चलिए, लेट मी कंटिन्यू. So this is the histogram. So you might have noticed one thing that as I told you about the definition of the histogram, that in histogram bars are of equal width. सबसे पहले तो equal width की bars होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो. And moreover bars they are adjoined to each other. That means उनके बीच में कोई gap नहीं होता. ये बार साथ में दूसरा बार, साथ में तीसरा बार, and so on. Thirdly, intervals are along x-axis. इसको हम usually x-axis कहते हैं, ये y-axis. And frequency means किसी चीज का number, जैसे कि number of students है यहाँ पे. Frequency means number of students that is along y-axis, right? So कुछ चीजें हिस्टोग्राम के बारे में सीखो दे अच्छे से. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 का डिफरेंस, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, हर एक बार में 5 का डिफरेंस है. बट 0 से
फर्स्ट बार तक का डिफरेंस जो है वो 125 है। 0 से फर्स्ट बार का डिफरेंस 125 है। इसका मतलब ये डिफरेंस हमारे बाकी डिफरेंसेस के साथ मैच नहीं कर रहा। दिस डिफरेंस इज नॉट मैच्ड विद रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस, इसलिए हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर निकालने का मतलब ये थोड़ा किसको उठा के बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जिगजैग साइन बना देंगे जिसको बोलते हैं किंक। दिस इज किंक। किंक मीन्स दिस डिस्टेंस डजंट बिलोंग टू आवर डाटा। ये डिस्टेंस हमारे डाटा से बाहर है, ये हमारे डाटा के साथ बिलोंग नहीं करता, राइट? हाँ जी मनस्वी, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम एक बार हिस्टोग्राम की डेफिनेशन बता दोगे? मैम मैं नोट नहीं कर पाया था। साथ बता रही हूँ, सुनो। सो हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार्स दे आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ and they are adjoined to each other, there is no gap, intervals are taken along x-axis and frequency is taken along y-axis. हाँ जी रिदम। मैम ये वाला क्वेश्चन आप फिर से करवा दोगे? एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम। शुरू अभी किया है, अभी शुरू किया। सो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं दे आर joined to each other, no gap, they are of equal width. Secondly, जो इंटरवल्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे, और जो किसी चीज का नंबर होता है जैसे कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड गैप सेम होना चाहिए। 5 का है, ये गैप सेम नहीं है, ये 125 का है। 0 से 125 डिफरेंट हो गया। अगर आपका ओरिजिन से पहला गैप डिफरेंट आएगा, आपने किंक लगा देना है। किंक मींस यहाँ पे एक जिगजैग का साइन लगा दोगे जो कि ये बताएगा कि ये हमारी इंटरवल्स की रेस से बाहर है, ठीक है? लेट अस डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज which information is being given in the by this histogram? Heights of students, heights of students is the information which is given by this histogram. Second, which group contains maximum girls? यहाँ पे number of students की number of girls है, heights of फिर girls, right? Then which group contains maximum girl? ये सबसे ऊंचा है, कौन सा इंटरवल बना? 140 to 145. This group is containing maximum number of girls. 140 to 145. This group is containing maximum number of girls. Third, third question is, how many girls have height of 145 centimeter and above? कितनी गर्ल्स की हाइट 145 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके उससे ऊपर जा रही है? 145 से शुरू हो जाओ। 4 गर्ल्स प्लस उससे ऊपर 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 वाली सारी 2 and then 1. This is 7. 7 girls are there whose height is starting with 145 and goes up to the highest level. Then if we divide the girls into the following categories, how many would there be in each? 150 centimeter and more. Group A. अगर ग्रुप A में 150 सेंटीमीटर एंड मोर देन 150 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं तो कौन सी गर्ल्स आएंगी? 155 सेंटीमीटर मोर, 2 + 1। ग्रुप A में 3 गर्ल्स हो जाए, ठीक है? ग्रुप A it will be having 3 girls. नेक्स्ट, अगर हम 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, लेस देन 150, 140 से स्टार्ट हो गए, 150 से कम यानी कि इससे ऊपर नहीं जाना। कितनी गर्ल्स आएंगी? 7 + 4, ये हुए 2, 140 से 150. दिस इज ग्रुप B and this is 7 + 4 and that is equal to 11. Next is less than 140 centimeter, less than 140 centimeter. This is group C.
ग्रुप सी लेस देन 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर से कम कम, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 and this is 6. So very easy. 150 सेंटीमीटर से ज्यादा 150 सेंटीमीटर से शुरू होके वहां तक एंड मोर 150 सेंटीमीटर भी लेना है, ठीक है। सो 140 एंड लेस देन 150, 140 से स्टार्ट होके 150 के नीचे नीचे तक की वैल्यूज कितनी गर्ल्स आ रही हैं एंड अकॉर्डिंगली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्राई दिस। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1. Question number first. Let us see what the question number first is. Number of letters for he says for which of the following you used to draw histogram. हिस्टोग्राम हम उसी केस में बनाते हैं जहां पे हमारे पास वैल्यूज मैक्सिमम हो और हम उन वैल्यूज को इंटरवल्स में ग्रुप कर दें। फर्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। पोस्टमैन के बैग में अगर डिफरेंट एरियाज की लेटर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा एक पोस्टमैन अपने बैग में कितने एरियाज की, उसको हर पोस्टमैन को एरिया डिवाइड किया होता है, कितने के एरिया की लेटर्स लेके घूम सकता है, 10 20। तो आप उनको कैटेगरी बना के ए ग्रुप में कितनी है, ए एरिया की, बी एरिया की, सी एरिया की, डी एरिया की और ई एरिया की, और वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स लिख सकते हो। तो दिस विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम क्योंकि यहाँ पे हम इंटरवल्स नहीं बना सकते, right? So this will be represented by bar graph. First is not by histogram. Second part is height of competitors in an athletic meet. You know, when there is athletic meet, competitors are very large in number. और उनकी हाइट की अगर बात करें, that will also vary भी करेगी, 1-1 सेंटीमीटर से हाइट का फर्क पड़ता है। तो आप ये तो नहीं लिख सकते 131 हाइट वाइट के कितने हैं, 132 के कितने हैं, 133 के कितने हैं। नो, यू विल मेक द इंटरवल्स ऑफ द हाइट लाइक दिस, 130 to 140, 140 to 150 and so on. So that means in this data we will make the intervals, with the help of intervals we will depict this data. So second वाले का आप हिस्टोग्राम बना। Third, let us start with the third. Third is C part. Number of cassettes produced by 5 companies. अब कंपनी 5 है, कंपनी ए, कंपनी बी, सी, डी, ई, उन्होंने कितनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस की, ये होंगी नंबर ऑफ कैसेट्स। तो यहाँ पे आप इधर इंटरवल्स नहीं बना सकते, दैट मीन्स हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। वेयर यू कैन मेक द इंटरवल, देयर द हिस्टोग्राम विल बी फॉर्म, वेयर यू कांट मेक द इंटरवल, हिस्टोग्राम कांट बी फॉर्म, ठीक है। फोर्थ पार्ट, पेपर में आपको आ सकता है गिव एग्जांपल ऑफ अ डाटा हुज हिस्टोग्राम कैन बी मेड। सो हाइट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। फोर्थ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM, सुबह के 7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक, बीच में बहुत सारे इंटरवल्स आएंगे, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, you can make the intervals of the data. So right here you can make the interval, so we will draw the histogram. So concludingly we can draw histogram for second and fourth data, ठीक है। I have explained why so and why not so. चलिए question number second. The shoppers who come to a departmental store are marked as man, woman, boy, girl. Following list is given to you. You make the frequency distribution table with the tally marks and draw a bar graph to illustrate. I will just give you the hint. You will do it yourself as we have done these kind of questions and try these. So आप सबसे पहले लिखोगे shoppers, जो शॉपिंग करने आ रहे हैं, men, women, boy and girl. Number of persons. नहीं, पहले tally marks. टैली मार्क्स सेकंड में, और थर्ड में नंबर ऑफ शॉपर्स। यहाँ पे आप लिखो कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, कैटेगरी, पहले कैटेगरी, फिर टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ शॉपर्स।
खुद टैली करना कि मैन कितने हैं, मान लो मैन 5 है, 1 2 3 4 5, मान लो विमेन 4 है तो 4, मान लो बॉयज 6 है, 1 2 3 4 5 6, गर्ल्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता नहीं मुझे कितनी है, मैंने रफली सी बना दी, आप खुद करोगे। इसके बाद इसको बनाने के बाद आप इस डाटा का बार ग्राफ बनाओगे। वी ऑल नो हाउ टू मेक द बार ग्राफ, सबको पता है बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू विल डू इट। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे टेलीमार्क्स खुद बनाना, मैं ये लिख देती हूँ, दिस इज 28 15 5 एंड 12, ये डाटा आएगा आपके पास। अब आपने इसका बार ग्राफ बनाना है, देखो ध्यान से, यू नीड टू ड्रॉ इट्स बार ग्राफ। हाउ टू मेक द बार ग्राफ, लेट मी टेल यू। बार ग्राफ के लिए आपको पहले 2 लाइनें बनानी है ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओ। कैटेगरी हमेशा एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है। अब कैटेगरी आपने एक एक ब्लॉक छोड़ के बनाना होता है बार ग्राफ में। मैक्सिमम वैल्यू है 28, मिनिमम वैल्यू है 5, 10 10 का गैप ले लो, 10 ब्लॉक्स 10 20 एंड देन 30। फर्स्ट इज मैन, 28 मैन, 28, 20 के बाद 8 लाइंस काउंट की, वापिस आए, ब्लॉक पूरा किया, दिस इज M 28। नाउ लीव वन ब्लॉक, विमेन, हाउ मेनी विमेन, 15, 10 के बाद 5 लाइंस काउंट की, गैप उतना ही रखना है, दिस इज विमेन, दिस इज 15। देन बॉयज 5, 0 के बाद 5 लाइंस, दिस इज बॉयज एंड दीज आर 5 in number। एंड देन इट कम्स टू गर्ल्स, 12 गर्ल्स, 10 के बाद 2 लाइनें काउंट की एंड दिस इज 4। सो स्केल कैसे लिखोगे, बार ग्राफ में हम सिर्फ वाई एक्सिस का लिखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 10 स्मॉल यूनिट्स भी कह सकते हो आप, और यू कैन राइट 10 शॉपर्स, एनी वे यू कैन राइट, ओके। So this is question number 2 of exercise. Let us start with the third question. 5.1, third question. Following are given to be the wages of the 30 workers in a factory. फैक्ट्री में 30 वर्कर्स का वेजेस हमें दिया हुआ है। Wages of 30 workers of a factory, it is given to us using Telemarks, draw frequency table and then draw histogram। चलो सबसे पहले मुझे बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो सबसे पहले wages in rupees, Telemarks I am leaving, you will make it yourself, Telemarks, एंड देन नंबर ऑफ वर्कर्स को, नंबर किसी चीज के नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, एफ। नंबर ऑफ समथिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे उसने हमें बोला है कि आप टैली मार्क्स बनाते हुए इंटरवल्स में वेजेस को कन्वर्ट कर दो। इंटरवल्स कैसे बोले उसने, 800 से 810, 810 से 820। गैप उसने खुद बता दिया, पेपर में जरूरी नहीं आपको बताया हो। कैसे क्रिएट करते हैं इंटरवल्स को, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो अपने डाटा की, सबसे छोटी वैल्यू है 804 एंड देन सर्च आउट सबसे बिगर वैल्यू। सबसे बिगर वैल्यू आपके पास है 890, 898। इंटरवल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसने बोल दिया कि ये इंटरवल्स लो, हमने ले लिए, ऐसा नहीं, हम क्रिएट करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स को क्रिएट करने के लिए छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, मैंने आपको बोला 10 10 का गैप लो, तो 10 का गैप लेते हुए 804 किस में आएगा,
800 to 810, then 10 to 20, ठीक है, then 20 to 30, then 830 to 840, then 840 to 850, then 850 to 860, then 860 to 870, 870 to 880, 880 to 890, 890 to 900. इस डाटा में आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो कवर हो गई। 800 से स्टार्ट करते हुए 10-10 का गैप लेते हुए हमने 900 तक वैल्यूज को पहुंचा दिया। अब टैली मार्क्स खुद बना लेना, मैं नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देती हूँ। आपने जब 800 से 810 काउंट करना है तब आप 810 को काउंट नहीं करोगे। कल बताया था मैंने, इंटरवल में अपर लिमिट एक्सक्लूड, एक्सक्लूसिव इंटरवल 810 नेक्स्ट में आएगा। सो दिस विल बी 3, 20 को काउंट नहीं करोगे, वो नेक्स्ट में होगा। दिस विल बी 2, देन 1, देन 9, देन 5, देन 1, देन 3, देन 1, देन 1, देन 4। आपने काउंट किया 810 को इसमें नहीं करना, 820 को इसमें नहीं करना, 830 को इसमें नहीं, अगले में। कल बताया था। इज इट एम आई क्लियर टू यू अबाउट दिस कि अपर लिमिट को पर्टिकुलर इंटरवल में नहीं काउंट करते? ठीक है, अब इनको काउंट करो, टोटल करो। अगर इसका टोटल 30 आ गया तो इसका मतलब हमारा डाटा काफी हद तक ठीक है। कैसे? क्योंकि हमने 30 वर्कर्स का हिसाब किताब करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास जो है नीचे टोटल बनना चाहिए, 30 वर्कर्स के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल ड्रॉ हिस्टोग्राम। लेट अस स्टार्ट। X-axis, this is Y-axis. Starting with 0. First of all, we are having 800. 800. 810. एक एक डार्क लाइन के ऊपर नोट करते जाओ। 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड देन 900। और नीचे हेडिंग बनाओ नंबर ऑफ, नहीं, दिस इज वेजेस, वेजेस इन रुपीस। नंबर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस। सो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स का नंबर तो बहुत छोटा सा है, 1 से लेके 9 तक, तो आप 1-1 का गैप ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1-1 का गैप। अब एक चीज देखो ध्यान से, सारे इंटरवल्स में 10-10 का गैप है, बट फर्स्ट वाले में 800 का, सीधा ही 800 का, यानी कि फर्स्ट वाले का गैप बाकी के इंटरवल्स के गैप के साथ मैच नहीं करता। दैट मींस दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड। कैसे? किंक लगाओ, zigzag kink, very important. If the gap of the first interval is not matched with the rest, you have to put the kink. आपको kink लगाना है। Let us start with drawing of the histogram. 800 to 810, 3. 810 to 820, 2. 20 to 30, 1. 30 to 40, 5. जिस पे खत्म हुआ उसी पे शुरू करना है। इस पे खत्म हुआ है ना, इसी के साथ अटैच करना है। 40 to 51, इसी से शुरू कर देना है। 50 to 63, इसी से शुरू करना, इसको ऊपर ले जाओ। 60 to 71, इसी के साथ अटैच करो। 70 to 81, इसी के साथ अटैच करो। 80 to 90, एक मिनट, दिस इज 40 to 50, गलत होगा ना थोड़ा सा। 3, 2, 1, 9, 5, दिस इज 1, 3, 1, 4। 830 to 40 पे 9 है, गलत कर दिया हमने यहाँ से। एक मिनट, 20 to 30 पे भी यहाँ से गलत हुआ है। 30 to 40 associated with 9. 40 to 55. 50 to 61.
60 to 73 इसी से उठाना है। 70 to 81, 80 to 91, 90 to 904. You see, while making the bars, I am making them adjointly. That means जहां पे एक बार खत्म है वहीं पे दूसरा बार शुरू होगा. Please mind it. और उनके बीच में गैप नहीं होगा. आपके पास बार ग्राफ है, आपके बार सारे एक जैसी विड्थ के आने चाहिए. मेरे थोड़े से कुछ कुछ लग रहे हैं पर नहीं. हिस्टोग्राम में स्केल दोनों ही लिखने होते हैं, एक्स एक्सिस का भी एंड वाई एक्सिस का भी. एक्स एक्सिस के अलोंग वन बिगर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ₹10 या 10 स्मॉल यूनिट. एंड वाई एक्सिस के अलोंग वन बिगर ब्लॉक इज इक्वल टू 1 वर्कर. Scale is to be written. Very important to write the scale. This is how to draw the histogram. Okay. तो थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला था हिस्टोग्राम ड्रॉ करो. मैंने थर्ड क्वेश्चन साथ साथ ही हो गया. कुछ आंसर्स देने हैं. Which group have the maximum number of workers? किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? जिसका बार सबसे ऊपर है 830 to 840. This group is having maximum number of workers. Next question. How many workers earn ₹850 and more? 850 और उससे ज्यादा कितने वर्कर्स अर्न करते हैं? 850 और उससे ज्यादा. ऐड करो इनको. 5, 6, 3, 9, 10. 850 और उससे ज्यादा 10 वर्कर्स अर्न करते हैं. हाँ जी मनस्वी, एनी डाउट? विदाउट एनी रीजन हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है. चलिए नेक्स्ट. हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? 850 से लेस. 850 से लेस तो पीछे. 3 + 2 5, 5 5 10, 10 10 30, 20. 20 वर्कर्स आर अर्निंग लेस देन 850. लेस देन देखना हो तो पिछले वाली सारी वैल्यूज ऐड होंगी. मोर देन देखना हो तो अगले वाली सारी वैल्यूज. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन रादर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन रीडिंग ऑफ द ग्राफ. यू विल डू इट योरसेल्फ. Fifth question is again reading of the graph. You will do it yourself. हाँ जी सोमिल, what do you want to say? सोमिल. मम्मी यस मैम, मैंने पूछना था कि इस एक्सरसाइज का होमवर्क क्या है? होमवर्क मार्क कर लो. You will do first question, second question, third question, fourth question. सारे करने पड़ेंगे बेटे क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट है ना. You will do all. ठीक है चलो. मैम. हाँ जी मैम जो एक्स एक्सिस है वहां पे मैम सिर्फ वेजेस ऑफ वर्कर लिख सकते हैं मैम. जो भी है हेडिंग है मैम ये पूरा लिखना है. मैंने जैसे आपने 800 लिखा है. लिखा तो है वेजेस इन नो मैम. जैसे आपने लिखा है 800 to 810 मैम इसके कोई वर्ड होगा जैसे कि कम, जैसे हमें पिछली बार होता था मैम बार ग्राफ में. क्या क्या दोबारा बोलना. मैम जैसे हम 7th में एक्स एक्सिस में जैसे कि हम बार ग्राफ होते थे बेटे. वहां पे जो इंटरवल्स हैं वही लिखने होते हैं. कुछ अपनी तरफ से नेम नहीं दे सकते. ओके मनस्वी, इज इट ओके? इंटरवल्स में आपको वही इंटरवल्स लिखने होते हैं जो आपके पास क्वेश्चन में हैं. अगेन यू आर रेजिंग हैंड. आई एम आस्किंग इज इट ओके, अदरवाइज अनम्यूट योरसेल्फ. चलिए ओके चलो. दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1. लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 5.2. Sorry, 5.2 के concepts I am going to start with. चलिए. You know we have learned how to draw bar graph with the same gap. Bars are associated when some categories intervals नहीं होते.
एक साइड पे किसी चीज का नंबर होता है तो हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। डबल बार ग्राफ जब किसी कैटेगरी के बारे में दो चीजों की इंफॉर्मेशन हो, जैसे हमने किया था साइकिलिंग एंड वन इज वॉचिंग टीवी, है ना। सो कोई दो चीजें एक ही कैटेगरी के साथ एसोसिएटेड हो एंड देन डबल बार ग्राफ। हिस्टोग्राम इन द केस ऑफ इंटरवल्स वी ड्रॉ इन हिस्टोग्राम। And one more thing is there, which is graphical representation of data, and that is known as pie chart. आप लोगों ने भल्ला चार्ट, फ्रूट चार्ट सब खाई होगी, है ना। कभी पाई चार्ट के बारे में हमने नाम, पाई चार्ट का हम पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, मुंह में पानी आ गया भल्ला चार्ट और फ्रूट चार्ट को सुन के। चलो कोई बात नहीं, काश की पाई चार्ट को भी करते करते आपका मन उतना ही खुश हो जितना भल्ला चाट खाते हुए और फ्रूट चाट खाते हुए आपका मन खुश होता है ना। चलो देखते हैं ये पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट इज द सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन of data in which data is represented with the help of a circle, with the help of circle। जैसे फ्रूट चार्ट में फ्रूट की हेल्प लेते हैं, भल्ला चार्ट में भल्ले की हेल्प लेते हैं, उसी तरह से पाई चार्ट में सर्कल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू सर्टेन फॉर्मूलाज दैट यू विल रिमेंबर इन केस ऑफ पाई चार्ट। सर्कुलर एंगल, परसेंटेज, जस्ट अ मिनट, सर्कुलर एंगल की पहले मुझे डेफिनेशन आपको बता दैट हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, what we need for the pie chart, what ingredients we need, and if we mix the ingredient with the proper proportion, we'll get very yummy chart, and that is known as pie chart। देखते हैं कल कैसा टेस्ट देती है हमें पाई चार्ट। सो अगर आपको वाकई में पाई चार्ट टेस्ट करनी है तो कल फिर से हम मिलेंगे जूम प्लेटफॉर्म पे। टिल देन टेक केयर।